दिखाई देंगी एक अलग फाइनल के साथ। आज से आप वो फॉर्म हासिल कर सकते हैं बाली ट्रॉफी के, एनसीपी कप के। और सबसे बड़ी बात यह है और बड़ी बात यह है कि बाली ट्रॉफी 17 फरवरी से शुरू होती है। अल्ताफ बाली के दिमाग में हमेशा क्रिकेट चलता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि दुनिया क्रिकेट में सबसे पहला जो एक दिवसीय मैच खेला गया दिन और रात की रोशनी में, वो 17 फरवरी 1985 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और 27 फरवरी को फाइनल इसलिए करते हैं कि 27 फरवरी वैसे भी मराठी भाषा दिवस है, यानी महाराष्ट्र की शान को बाली और उजागर करते हैं। दूसरी बात है कि उसके बाद आप देखने जा रहे हैं कभी भी कमिंग सून बी इंडियन ट्रॉफी होने जा रही है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे सिटी क्रिकेट में। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जहां पर फिल्मी हस्तियों का और क्रिकेट हस्तियों का जमावड़ा करने वाले स्पॉन्सरों के स्पॉन्सर तकीम आजमी और भुट्टू का कैफी आजमी ट्रॉफी इसी ग्राउंड पे 6 से 17 मार्च। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग भादवड़ के क्रिकेट ग्राउंड पे महिंद्रा स्पोर्ट्स का शो आमदार चषक, वो जब तुरंत खत्म होगा तो इसी ग्राउंड पे एक अद्भुत शो होने जा रहा है योगेश भोईर और एडवोकेट राजू पाटिल का, जो आईपीएल अंदाज में रहेगा इसी ग्राउंड पे दिन और रात की रोशनी में 6 से 17 अप्रैल। उसके बाद कभी भी दस्तक दे सकता है भिवंडी रत्न शोएब खान गुड्डू का फ्री एंट्री टूर्नामेंट, और कभी भी दस्तक दे सकता है द लेजेंड ऑफ भिवंडी का प्रतिभा विलास 2017। बहुत क्रिकेट बाकी है, अभी भी कहीं स्पॉन्सर है जिनको डेट नहीं मिल रही है। पांडुरंग धर्मा पाटिल का भी एक शो होना है फ्री एंट्री। लेकिन एक बात है कि अंजुमन ट्रॉफी जब शुरू हुई वहां से क्रिकेट तो दीवाना वार चल रहा है और हद कर दी मापोली क्रिकेट धमाका ने। सो बैक टू क्रिकेट नाउ टू अपनास ऑन द ग्राउंड। Akash and Nitin is going to be the wicket taker bowler Jilani open the bowling attack. And Ajay, what do you think about Jilani in this season? Jilani claimed the wicket, but he also very expensive bowler. But he is the trump card bowler of Pioneer Sport, and in previous season 126 wicket, best bowler of the year in previous season. I think Zilani is very great player. He's a great bowler for Pioneer Sports. We have seen over the years he's doing so well And for his side. especially Pioneer, please cooperate us as far as time concerned, because 30 minutes calculated time for 6 overs. Here goes Jilani, charging from here. Is a rhythm bowler. Here he go. Turn from VIP and facing him Akash. First ball. Goes to Akash, full toss, put away, over the infield, one bounce. There is a Danish, no chance for him, and ball is racing for 4. This is a poor start from Jilani. So Akash off the mark with boundary, and Maggie 11A 4 for a wicket. Jilani charging from here. Goes to Akash, this time on drive. Danish find the ball in deep, but enough time batsman gets easy 2 runs. The score moves up to 6 for no wicket. Good start from Maggie. Wasn't from the middle of the bat, but it went in the gap towards the deep mid wicket, and good running between the wickets. Jilani turn
from VIP end. Facing him batsman Akash, who is on 6. First over in progress. This time Meskew is struck. There is the fielder, but misjudging. One bounce cross the boundary for 4. Unbelievable. Majid Bobre is there. He misjudging in the air. Running is right. One bounce cross the fence for 4. Forcing off his back foot from Akash. I think he did not see the ball there. He was running in different direction. Ball was traveling towards the long on and he was moving towards his right. Ball went towards his left. Have a look at that. Yes, I think this is the unbelievable. Because Majid Bobre, one of the class fielder. Here goes Jilani. Right arm over the wicket. Goes to Akash, fine delivery. Up to the batsman, Bisim, outside the off stump. Welcome the genius personality and BC4 chairman, Altaf Bali. And all the best for Pioneer from Samir Ansari and Zain Gorekar, Kharipar. Here goes Jilani. This is not a very good start. This time fine delivery, tried to York, played very awkwardly, tucked away on the onside and with the stroke batsman through for 1. 11 for no wicket. That was a special delivery in swinging Yorker. Batsman was trying to give some room himself, but followed by Zilani. Excellent ball. Now batsman Nitin on his strike. He loved to play a slogging stroke, famous slog sweeper in his style of his T-ball. Jilani. But this time helicopter drive off his toes, they threw for 1. Captain trembling there. And that marks the end of the Jilani's over. Very good start from Maggie. 12 for no wicket. अल्ताफ बाली हमारे बीच में, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है. क्रिकेट के 2 रुख अगर हम करें सिक्के के, तो एक तरफ भिवंडी क्रिकेट और एक तरफ अल्ताफ बाली. जो डिसिप्लिन और जो नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम का जो चलन आया वो अल्ताफ बाली ने ही लाया भिवंडी क्रिकेट में. न सिर्फ क्रिकेट बल्कि देश का सम्मान भी भिवंडी क्रिकेट में लौटाने के लिए अल्ताफ बाली ने कई नई चीजें लाई. अल्ताफ बाली ने क्रिकेट में. जी हाँ, और अब हर टूर्नामेंट में हम देखते हैं फाइनल से पहले राष्ट्रगान होता है. ये बहुत ही गर्व की बात है सभी भारतवासियों के लिए. 1 ओवर 12 रन, कोई विकेट नहीं. खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए उसामा को बुलाया गया. आज धीमे गेंदबाज काफी चले. सुबह से हमने देखा किस तरह उमर खान ने गेंदबाजी की. रईस और रियाज ने भी अच्छा स्पेल किया, लेकिन जगदीश नाइक ने साबित कर दिया कि उनका क्लास वही है जो कभी रहा था. उसामा अजीत समझ सेठ स्टैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं. तेज गेंद फ्लिक कर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ. उससे बढ़कर फील्डिंग डीप में अपने टीम के लिए 2 रन बचाए दानिश खोत. ये हालांकि उतने प्रैक्टिस में नहीं है, ये ज्यादा प्रैक्टिस में है, तो ये बहुत फुर्तीले खिलाड़ी हैं और बल्लेबाजी में भी बहुत लाजवाब है. ये देखिए गजब की फील्डिंग. यस, सेविंग 2 रन्स. शानदार फील्डिंग, पूर्वानुमान बहुत अच्छा था. 14 पे पहुंचा स्कोर. उसामा तेज गेंद बीट कर दिया ऑफ स्टंप के बाहर. अच्छा उछाल भी मिला था और लेंथ गेंद को पीछे खेलना चाहते थे बैट्समैन नितिन.
ओसामा की खास बात है सिद्दीक भाभी, जैसे जैसे उनका ओवर आगे बढ़ता है वैसे वैसे उनकी गति भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल युवा हैं और काफी जोर है उनकी बाजुओं में। फील्ड की जमावट, कोई स्लिप नहीं, कोई गली नहीं। शॉर्ट टर्म में एक लगभग गली है डिपिच, एक पॉइंट है। इस मरतबा इनसाइड एज लगा था, बढ़िया फील्डिंग रमीज रईस की। चाइनीज कट लगा था, लेमन कट जिसे कहते हैं, पहले बाउंस पर गेंद गई थी। जी हाँ, कुछ कमेंटेटर्स इसको फ्रेंच कट भी कहते हैं, लेकिन है तो कट ही। बिल्कुल, चाहे फिर वो चाइना का हो चाहे फ्रांस का हो। उसामा राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, इस मरतबा हुक कर दिया है। दानिश की बढ़िया कोशिश रहेगा जाती हुई, 4 रनों के लिए गेंद डीप स्क्वायर लेग पर। शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, पहले ही क्रीज में पीछे खड़े थे बैट्समैन, क्रीज की गहराई का अच्छा उपयोग किया। ये देखिए, खराब गेंद तो नहीं थी लेकिन शॉट बनाया था, मौका नहीं था दानिश के लिए। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा मैगी का 18 रन। आज शायद कप्तान मैगी ने कुछ अलग ही आदेश दिए हैं। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। इस मरतबा बाहरी किनारा, फ्लाई स्लिप से होती हुई गेंद थर्डमैन की तरफ निकल रही है। 3-3 खिलाड़ी को डॉज देती हुई 4 रन। किस्मत वाले रन, इरादा नहीं था बैट्समैन का थर्डमैन की तरफ खेलने का, लेकिन किनारा लेकर चली गई थी। रफ्तार में यहाँ पर चकमा खा बैठे थे बैट्समैन, लेकिन किस्मत वाले हैं, 4 महत्वपूर्ण रन मिले। ये देखिए, फ्लाई स्लिप से होती हुई गेंद चली गई थी। 3-3 खिलाड़ी पीछा कर रहे थे लेकिन गेंद तीनों को शिकस्त देती हुई 4 रन। आउटफील्ड काफी तेज है और खासतौर पर जब पीछे की तरफ गेंद जाती है विकेट कीपर के पीछे तो और भी तेज गति से जाती है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है मैगी का 22 रन। उसामा नितिन के लिए, इस मरतबा इनसाइड आउट स्ट्रोक, गजब का शॉट, 6 रन। क्या शॉट खेला है स्टीव वॉ के अंदाज में, अपने आप को रूम दिया था, वहां पे जगह बनाई थी। बहुत खूबसूरत शॉट। बहुत ही खूबसूरत शॉट था अजय घरत। ये देखिए रिप्ले में, रूम दिया थोड़ा सा अपने आप को, बल्ले के बीचों बीच लिया था। कमाल का शॉट, टाइमिंग कितनी अच्छी थी। स्टीव वॉ हो या मार्को हो, उनकी तो वाहवाही पूरे दुनिया में हुई थी, आगे लगा भी हुआ है। और क्या शॉट खेला वहां पर बैट्समैन ने। 2 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं। पॉइनियर को ब्रेक थ्रू की तलाश है, क्योंकि इसीलिए जिलानी को कंटिन्यू रखा है, क्योंकि पॉइनियर यहाँ पे ब्रेक थ्रू चाह रही है, विकेट चाह रही है। कप्तान आशिर कुछ समझाते हुए उन्हें। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर मैगी 11A की। मैगी का जो प्रदर्शन था मापोली क्रिकेट धमाका में, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन रहा था, तो वहां से काफी आत्मविश्वास उनके खिलाड़ियों को मिला होगा। यस एब्सोल्युटली। लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि मापोली क्रिकेट धमाका में पॉइनियर ने 78 के लक्ष्य को छुआ था। बल्लेबाजी की जहां तक बात करें तो बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं आशिर, माजिद, रमीज। जिलानी आक्रमण जारी रखते हुए, खेल की शुरुआत होती हुई जिलानी। राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज गेंद ऊपर गई है आसमान में, गेंद के नीचे एक खिलाड़ी और आउट हो गए। और आखिरकार जिलानी ने ब्रेक थ्रू दिया यहां पर पायनियर को। काफी ऊपर खेल बैठे, फुरकान ने कोई गलती नहीं की और देखिए जश्न मनाते हुए। मेरे ख्याल से फुरकान ने उस कैच को लिया है। जीत का जो सूत्र है पॉइनियर का, आप पिछले साल ये टीम बहुत
राइजिंग स्टार टीम रही थी, 3 फाइनल हारी थी, 2 जीती थी और कई टूर्नामेंट्स के लगभग सेमीफाइनल में वो रही थी। इसका अर्थ था, लेकिन अच्छा जज किया। ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में बहुत सुंदर टेलीकास्ट। अजय गलत बात यह है कि जीत का जो सूत्र है, की ऑफ सक्सेस, आप देखिए पॉइनियर का, जिलानी 2 से ज्यादा विकेटें लेते हैं, हमेशा पॉइनियर जीतती है। माजिद बोबड़े अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पॉइनियर ज्यादा मैचेस जीतती है। इस वक्त पॉइनियर को ऑल द बेस्ट है। मापोली से दानिश भूरे, शोएब भूरे, जब्बार ने पॉइनियर को ऑल द बेस्ट कहा है। नए बैट्समैन कुणाल, ये तो हलते डुलते रहते हैं स्टीव स्मिथ की तरह। विकेट के चारों ओर स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता इसमें नहीं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और उनका जो लगाया हुआ 6 आज भी इस ग्राउंड की याद ताज़ा करता है। जब सोहेल नवाब बेग में रिवर्स शॉट खेला था उन्होंने यासिर को, वो भी रात की रोशनी में। फुल टॉस गेंद बहुत ही आसानी के साथ खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। खराब फील्डिंग वहां पर, 2 रन पूरे अजहर थे। और इस स्पर्धा के वन मैन शो इवेंट मैनेजमेंट हमीश शेख पहुंच चुके हैं अपने दोस्तों के साथ। आपका इस्तकबाल है। फुल टॉस गेंद की थी जिलानी ने। ये थोड़ी सी समस्या रही है मुझे लगता है जिलानी के लिए, पिछले कुछ समय में ज्यादा फुल टॉस गेंदें कर रहे हैं। मापोली ट्रॉफी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। नहीं, पिछले साल के जितने भी बड़े नाम थे गेंदबाजी में, उन्हें काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। बहुत अच्छी गेंद यॉक किया था, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक धोनी के अंदाज में। दानिश ने गेंद को उठाया, तेज थ्रो, लेकिन क्रीज में पहुंच गए बैट्समैन कुणाल। कुणाल वैसे भी विकेटों के बीच में काफी तेज दौड़ते हैं। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 32 पे पहुंचा। नितिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही तेज दौड़ विकेटों के बीच में 21 पे खेल रहे हैं। नितिन का प्रिय स्ट्रोक है हेलीकॉप्टर ड्राइव, बहुत अच्छा खेलते हैं, कलाइयों का अच्छा उपयोग करते हैं अपनी बैटिंग में। दर्शक अब चारों तरफ से आते हुए अगले मुकाबले के टॉस के लिए तैयार रहना है। एनआर बोरपाड़ा के कैप्टन और साई विवान के कैप्टन। इस मरतबा पुल और पावरफुल गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर थी 6 रनों की। गजब का शॉट भेज दिया स्टेडियम के बाहर। शानदार बल्लेबाजी, एक लंबी पारी खेलने के इरादे से आए हैं ऐसा लग रहा है नितिन। ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ शॉट, वजन बैकफुट पर और गेंद मैदान के बाहर। क्या गजब का शॉट। तेज गेंदबाज के सामने इस तरह के शॉट इतने आसान नहीं होते। अब खतरे की घंटी मचती हुई पायनियर के लिए 38 रन हो चुके। बहुत शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी हालांकि, लेकिन उसको बहुत जल्दी परख लिया था और बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे पुल करने के लिए नितिन। जिलानी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, ओहो अनबिलीवेबल, 6 रन। ऐसा लग रहा है कि स्टीव वॉ वहां है, मैक्सवेल वहां है, ऐसा लग रहा है कि रिकी पॉइंटिंग वहां है। इस शॉट की जितनी भी तारीफ की जाए, शॉट ऑफ टूर्नामेंट, 6 रन। अद्भुत बल्लेबाजी, कौन कहेगा कि ये तेज गेंदबाज को खेला हुआ शॉट है। तीनों की झलक शॉट में, अनबिलीवेबल। जो गैसुद्दीन शेख ने मनोज भीड़ को मापोली में शॉट खेला था, वही शॉट यहां खेलते हुए नितिन। 3 छक्के जड़ चुके अपनी पारी में। जिलानी एक और आसमानी टोला, गेंद जाएंगे मैदान के बाहर। और नितिन पहले बैट्समैन बने जिन्होंने सिक्सर की हैट्रिक लगाई है उप महापौर कप में। छक्कों की हैट्रिक और बनके सिर्फ 3 ओवर में 50 रन। कमाल की बल्लेबाजी, आतिशी विध्वंसक विस्फोटक पारी खेलते हुए नितिन। बहुत ही महंगे साबित हुए जिलानी। कुल मिलाकर 2 ओवर किए और 34 रन दिए, जबकि इस सीजन का महंगा स्पेल भावेश पवार के नाम है
2 ओवर और 50 रन। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं नितिन? उनचालीस रनों पर अब तक 9 अर्धशतक लगे हैं और सीजन का जो बेस्ट स्कोर है वो बिंदास के नाम है 77। लेकिन 3 अर्धशतक अकेले किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट बिलाल शेख ने लगाए, एक शेखर दलवी ने, एक 2 एनआर की तरफ से बिंदास और संदीप मडवी, एक नंदन पाटिल ने लगाया, एक बाला ने लगाया और देखना है कि एक सूरज ने लगाया। इस ट्रॉफी में क्या कुछ होता है, आइए सुनते हैं अजय खरस से। 50 पर 1, 3 ओवर का खेल अभी भी शेष। वंडर स्पोर्ट्स के जब्बार शेख ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। कुणाल पहली बार स्ट्राइक पर, गेंदबाजी में परिवर्तन, ऋषि पटेल हाजी समझ से टेंट से। छोटी बैकलिप का उपयोग खाली क्षेत्र में ड्राइव किया है, दूसरे के लिए पलटते हुए बढ़िया बल्लेबाजी, अच्छी सोच यहां पर कुणाल की। गैप का इस्तेमाल किया था, ज्यादा जोर से खेलने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि हम पिछले 20-25 साल की तरफ देखते हैं तो पॉइनियर गेंदबाजी की सरताज टीम रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सीजन में पॉइनियर की गेंदबाजी है वो कमजोर साबित हो रही, जो उनकी मजबूत कड़ी रही है पिछले 20-25 साल में। मजबूत कड़ी पर ही वार किया है इस मैच में नितिन ने। बढ़िया गेंद धीमी गति से डाली हुई थी, समझ नहीं पाए थे कुणाल। और आपको तो पता है कि इंग्लिश की एक कहावत है कि हार्ड थिंग इज ब्रोकन अर्लियर, सख्त चीजें जल्दी टूटती है, सिर्फ शर्त है कि चोट वहीं पे लगाना चाहिए जहां से वो टूटे। थोड़ा सा शफल किया था, ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, स्टंप्स के ऊपर से गुजर गई थी गेंद। 39 पर खेल रहे नितिन, 2 पर कुणाल। मैगी 11 ए का स्कोर इस समय 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, कटर बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। नहीं, ये तो काफी अनुभवी गेंदबाज हैं और पिच के मिजाज को भी पढ़ा और बैट्समैन के बॉडी लैंग्वेज को भी। कहा जाता है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट फीचर, और वहीं कुछ यहाँ दिखा रहे हैं ऋषि पटेल। बहुत खूबसूरत चेंज ऑफ पेस था, गेंद हवा में लहराती भी आई थी। राउंड द विकेट कर रहे हैं, पढ़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली थी। एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ऋषि पटेल। रिवर्स शॉट इनफील्ड के ऊपर से, निश्चित रूप से बाउंड्री के बाहर, 4 रन। थर्डमैन ऊपर खड़ा था, 4 रन। सही सोच यहाँ पर, पॉजिटिव सोच मैं कहूंगा कुणाल की। पहले ही पहचान लिया था उन्होंने कि आने वाली गेंद भी कटर रहेगी, बाहर की तरफ कट होगी गेंद। विद द टर्न खेला और 4 रन हासिल किए, थर्ड मैन भी ऊपर था। इस ओवर में अभी तक 6 रन आ चुके हैं, 2 गेंदें अभी भी शेष। फिर से रिवर्स की कोशिश, हवा में गेंद, आसान सा कैच, कॉटन बोल्ड। क्या ओवर चल रहा है, एक तुम्हारी एक हमारी। यदि गेंदबाज बल्लेबाज दिमाग की बत्ती जला सकता है तो गेंदबाज भी, ये देखिए तेज किया था, इस बार कटर नहीं थी। आपको ये दिमाग की बत्ती पॉइनियर के मैच में बहुत याद आती है, यानी इसका मतलब है कि जहां एक मेंटोस खाया था कुणाल ने, ऋषि ने 2 खा लिए। ऐसा कह सकते हैं आप। हमारे बीच समीर बाबा, निजाम भाई, कामरान सैयद, कमरू बाबा, असरार भाई फ्रॉम दुबई, कामरान खान, सरफराज शेख,
और इम्तियाज अंसारी साहब पहुंच चुके हैं। हम आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं उप महापौर कप 2017 में। वेलकम। नए बैट्समैन मयूर, एक खतरनाक बैट्समैन आउट होते हैं तो दूसरे मैदान में आ जाते हैं। ये अंजुमन ट्रॉफी में बहुत चले थे और टीम को भी बहुत चलाया था। ये भिवंडी के लसित मलिंगा फंस गए। नहीं, लसित मलिंगा बचे बल्कि नितिन फंस गए और नितिन को आउट करने का एक ही जरिया था जहां पे वो आउट हुए। एक रन लेना चाहते थे, ऋषि ने गेंद को एक ही एक्शन में पकड़ा और स्टंप्स पे फेंक दिया। अभी तक पारी में लगने वाला सबसे बड़ा झटका मैगी 11 को। बहुत बेहतरीन पारी खेली है नितिन ने, 39 पर आउट हुए। ये देखिए सुरक्षात्मक तरीके से गेंदबाज की तरफ खेला और रन के लिए जाना चाह रहे थे, बहुत दूर रह गए। वाकई में इस पूरे इवेंट को मैनेज किया है अमित शेख ने। मैं अक्सर कहता हूं जब गैसुद्दीन शेख, अख्तर शेख, माजिद शेख, सुफियान शेख, अल्ताफ शेख जब खेलते हैं और जब कैच आए कि आए शेख अपना अपना देख, लेकिन अमित शेख ने इतना बड़ा शोला है कि हर कोई कहेगा अमित शेख हमारी तरफ देख। सफल ओवर समाप्त हुआ ऋषि पटेल का। जो बॉलिंग चेंज किया था कैप्टन ने, आशिर ने, वो रंग लाता हुआ पायनियर स्पोर्ट्स के लिए। सिर्फ 6 रन आए ओवर से और 2 बल्लेबाज आउट हुए। 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन टीम के कैप्टन मैगी आए हैं। ये बहुत ही दिलकश स्ट्रोक प्लेयर हैं, जैसे कि इस सीजन में आतिश पाटिल मराठा पंजाब के, उन्होंने 6 गेंदों पे 6 चौके लगाए मापोली क्रिकेट धमाका में। नंदन पाटिल के नाम 2 मरतबा सिटी क्रिकेट में रिकॉर्ड है 6 गेंदों में 6 चौके का। और हरीश ठाकरे के पास बाली ट्रॉफी में अमान भाभे को 6 गेंदों पे 6 चौके लगाए थे। मैच में पूरी तरह से वापसी की है पायनियर स्पोर्ट्स ने। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, पेविलियन एंड से जुल्फिकार लंबे बॉलिंग रनअप के साथ अपनी पहली गेंद लेकर सामना कर रहे हैं मयूर। फुल टॉस, ड्राइव किया उसको, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है माजिद के रूप में, केवल 1 रन। हमारे बीच जुबैर मेमन साहब है, आपका हम इस्तकबाल करते हैं और आपसे मोदेमाना इल्तिमास है कि आपको वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला करना है। ये बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पर पायनियर स्पोर्ट्स के पास है क्योंकि दोनों भी नए बल्लेबाज है क्रीज पर। सेट बैट्समैन आउट हो चुके हैं। एक शॉट थर्ड मैन और एक पॉइंट नजर आता हुआ। फाइन लेग काफी फाइन है दायरे के अंदर। और पिच के ड्राइव किया उसको, थोड़ा सा फंबल होता हुआ लेकिन कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं। डायरेक्ट हिट, अब जा रहे दूसरे रन के लिए और आखिरकार 2 रन पूरे होते हुए। अच्छा क्रिकेट हम देख रहे हैं, हालांकि अच्छा थ्रो पहुंचा था वहां से, डायरेक्ट हिट किया था माजिद बोबड़े ने, डीकॉक ऑफ भिवंडी। स्कोर बढ़ता हुआ मैगी 11 का, 59 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं इस समय डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017। दूर दूर तक फैलाया हुआ क्षेत्र रक्षण नजर आता हुआ। लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, अच्छा कैच। माजिद बोबड़े वैसे भी ज्यादा कैच छोड़ते नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा जज किया था, बहुत तेज गई थी गेंद उन तक। अब पॉइनियर कई मरतबा 70 और उसके आसपास के स्कोर को चेस किया। ये देखिए खूबसूरत कैच।
पारी लड़खड़ाती हुई अब मैगी 11 की। और जुल्फिकार इस वक्त हैट्रिक पे आ चुके हैं। अब तक 3 गेंदबाज है जिन्होंने हैट्रिक अंजाम दिए उप महापौर कप में। ये देखिए किस तरह से आउट हुए, तेज स्ट्रोक खेला था इन फ्रंट ऑफ द विकेट, सीधा माजिद बोबड़े के हाथ में। दोनों भी कैच लॉन्ग ऑन फील्डर के पास। लेकिन आपको तो पता है कि मापोली क्रिकेट धमाका में एक घटना हो चुकी है। हैट्रिक के तीनों कैच एक ही खिलाड़ी ने पकड़े। और वकी स्पोर्ट मापोली जो कल खेलने वाली है, उन्होंने 25 साल का कीर्तिमान यहाँ बनाए। उनके ट्रॉफी ने बहुत कीर्तिमान बनाए। अंजुमन ट्रॉफी में 10 के 10 बैट्समैन कैच आउट हुए, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। और पहले ओवर की 3 गेंदों पे उज्जवल को उन्होंने 3 विकेट दिए। हालांकि वो अनूठा हैट्रिक जो था वो ग्रामीण क्रिकेट से हुआ था मापोली ट्रॉफी में। एक ही फील्डर के पास तीनों कैच, तीनों भी हुक शॉट चले गए थे। कैप्टन मैगी अब आए हैं 7 नंबर पर। इससे पहले सलमान आए थे, सलमान आउट हुए, हरिकेश भी आउट हुए। हैट्रिक गेंद, अच्छी गेंद वहां पर बॉलर की तरफ। अपील, क्या ये कैच है या फिर क्राउड कैच? इसको एक्सपेक्टेटर कैच कहा जाता है, क्योंकि मैदान में बैठे हुए दर्शक समझते कि कैच लिया गया है। पहले बाउंस पर, हालांकि अपील तो हुई थी वहां पर, लेकिन साफ दिखाई दिया कि गेंद पहले बाउंस पर गई थी। परफेक्ट यॉर्कर थी, खदेड़ के निकाला था बैट्समैन ने। एमएससी के पप्पू भाई हमारे बीच में आ चुके हैं, आपका हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम। आज वनडे भी खेला जा रहा है पुणे में, भारत और इंग्लैंड के बीच में। यॉर्कर की कोशिश, बल्ला नीचे लाते हुए ड्राइव किया पैरों के सामने से डीप मिड विकेट पर 1 रन के लिए। शानदार ओवर समाप्त होता हुआ जुल्फिकार का। 60 रन 5 विकेटों के नुकसान पर मैगी 11। एनआर बोरपाड़ा के कैप्टन मुनाफ शेख, फाद दलवी भी हमारे बीच में, आपका भी इस्तकबाल है। आज पायनियर के शुभ चिंतक जरार खरवे डॉक्टर नजर नहीं आ रहे। पहले 3 ओवर्स का खेल जो था वो पूरी तरह से मैगी 11 के पक्ष में रहा था। 50 रन बने थे, लेकिन पिछले 2 ओवर्स में जबरदस्त वापसी की है पायनियर स्पोर्ट्स ने। सिर्फ 10 रन बने हैं पिछले 2 ओवर में और 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं। आप अमित शेख और उनके सभी दोस्तों को देख रहे हैं, जहाँ पे समीर, निजाम, कामरान, कमरू, असरार, कामरान, सरफराज और इम्तियाज। ऋषि पटेल, आखिरी ओवर की पहली गेंद ड्राइव किया उसको, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है। सिर्फ 1 रन, रनों को पूरी तरह से सुखा दिया है पिछले 2 ओवर में। बिल्कुल, एक बात है कि पायनियर का जो खेल है, ये कहां से भी, ये वो टीम है कहां से भी मोड़ लेती। आपने देखा कि पहले 3 ओवर तक जो राज था उसको खत्म कर दिया। यानी कि दोनों पैरों पर चलती है टीम, फ्रंट फुट पर भी कभी कभी रहती है, कभी कभी बैक फुट पर चली जाती है। लेकिन आदमी दोनों पैरों पे चले तो ये बैलेंस में रहता है, तो टीम बैलेंस में रहती है। लेकिन वाकई में मुकाबले काफी रोमांचक होते हैं पायनियर स्पोर्ट्स के। यही कारण है कि ऑडियंस देखिए, इनके साथ तो पहले मैच में इतने आए हैं। काफी दूर से लिया है गेंद को, ऑन साइड में, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर बढ़िया कैच, शानदार रनिंग कैच, शारिब खतीब, बहुत खूबसूरत कैच। और अजय गरत, आपकी मालूमात के लिए कि शारिम खतीब ने मेयर कप में एक ऐसा कैच पकड़ा है जिसका फ्रेम, फोटो फ्रेम लगाना चाहिए। विकेट कीपर थे और लगभग 34 स्लिप और गली के बीच में उन्होंने डाइव करके कैच पकड़ा था। कैप्टन मैगी सब्र नहीं कर पाए, ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, लगभग वाइड गेंद को उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की तरफ उछाल दिया था। और बैलेंस बहुत अच्छा रखा था बाउंड्री के अंदर। इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते हैं। पायनियर पूरी तरह मैच में वापसी करती भी। सलामी बल्लेबाजों को निकाल दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया है।
लेकिन अजय गरज जो बची भी 4 गेंदें हैं, ऋषि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एबव 10 रन आ गए तो कठिनाइयां, और अंडर 10 आ गए तो फिर पॉइनियर की बल्लेबाजी भी इन फॉर्म है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि गेंदबाजी 6 गेंदबाज हैं मैगी के पास। इस मर्तबा हुक किया, ओहो, कप्तान आशिर ने अनबिलीवेबल कैच पकड़ा है गली पर। मैं तो अक्सर कहता हूं कि जो गली के चक्कर हैं वो ठीक नहीं होते हैं, चाहे क्रिकेट की गली हो चाहे महबूब की गली हो। मयूर भी लौटते हुए निराश होकर पवेलियन की तरफ। ये देखिए, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, ऊपरी सिरा लगा बल्ले का, गली में डाइव लगाते हुए हो अपने आप को झोंक दिया, चोटग्रस्त हो गए, लेकिन कैच नहीं छोड़ा उन्होंने। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कहीं ना कहीं, लेकिन उनकी स्थिति बता रही कि वो बिल्कुल सेफ हैं। यस, थोड़ा सा जख्मी हो चुके, पैर में उनके काफी चोट आई है, और ये अच्छा समाचार नहीं है पॉइनियर के लिए, क्योंकि टॉप 10 बैट्समैन जो इनफॉर्म चल रहे हैं इस सीजन में, उसमें आशिर का नाम है। कम से कम 6 से 7 मरतबा वो 30+ रन बना चुके हैं अपने टीम के लिए। दाएं घुटने में उनकी चोट आई है। मैदान से बाहर जाते हुए कैप्टन आशिर। अयाज मेमन हमारे बीच में, आपका भी इस्तेकबाल है, वेलकम। अल्ताफ बाली के बहुत ही खासुल खास हैट्रिक का मौका है ऋषि पटेल के पास। पचास तक एक ही विकेट था और 61 तक 7 विकेट। ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरी है। हैट्रिक गेंद, अपील, बहुत जबरदस्त अपील है वहां पर। देखना अंपायर का क्या इशारा था, लिख भाई, रिप्ले में देखना चाहेंगे हम। टो से टकराई थी, हैट्रिक गेंद थी, यानी आपका कहना है कि 50 पे 1 और 61 पे 7, यानी 62 पे, यानी ये देखिए, ओ हो, यहां से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही नजदीकी मामला रहा था। पैर मुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन बहुत नजदीकी मामला था। बेनिफिट ऑफ डाउट इन फेवर ऑफ बैट्समैन दिया गया है। अब केवल 2 गेंदें शेष है इस पारी में। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ऋषि, रिवर्स खेलने की कोशिश, अपील, और इस बार आउट। इस बार उंगली ऊपर। 62 पे 8 अजय गरत, 50 तक 1 और 62 पे 8। यानी आपका कहना है कि पायनियर के सारे खिलाड़ियों को मैगी काफी पसंद आ गई। पहले 3 ओवर में तो नहीं पसंद आई थी, रिवर्स खेलना चाहा उन्होंने। आकाश थे बैट्समैन। अब नए बैट्समैन गुड्डू को काफी लेट ऑर्डर भेजा गया है। अंपायर के मन में कोई शंका नहीं थी इस बार। मुकुलदास पाटिल का निर्णय आता हुआ आउट का। नंबर 10 पर आए हैं गुड्डू। 62 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। 56 पर दूसरा विकेट गिरा था, उसके बाद तो झड़ी सी लग गई है। ऋषि लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए फिर से रिवर्स खेला, डॉट गेंद। तो कुल मिलाकर जहां 50 पे 1 था, 62 रन बनाए मैगी ने 8 विकेटों के नुकसान पर। SMP 997 पे आप मैच देख सकते हैं, 884 पे सिटी क्रिकेट उप महापौर चषक देख सकते हैं, और SSS 335 पे। थैंक यू पप्या भोये, थैंक यू राजेश सेट्टी, एंड थैंक यू प्रिंस मूवीज। आइए दोस्तों, तालुका क्रिकेट में नंबर 2 पे रैंक करने वाली नरेश माली फैम टीम एनआर बोरपाड़ा और योगेश भैर फैम टीम साई विवान, दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में बैठना जरूरी है।
साई विवान के कैप्टन साई विवान के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए। साई विवान के कैप्टन, वेलकम आतिश बामड़े एंड वेलकम जावेद। आज रविवार है, वार्ड वाले कैप्टन मेरे साथ हैं। मैं समीर बाबा और नियाज भाई से गुजारिश करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। निजाम भाई और समीर बाबा हमारे बीच में आते हुए टेल कहना है आतिश बामड़े का, और आ गया है इस वक्त टेल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों से। गुजारिश है कि आपको वीआईपी की जिन्नत बनना है। आतिश, शाम भी है और चाम भी है, और उप महापौर चषक में आप आए हैं। यहाँ के तमाम टूर्नामेंट ऐतिहासिक रहते हैं, ये टूर्नामेंट आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और बाउंड्रीज भी थोड़ी नज़दीक किया है, बॉल में थोड़ा चेंज है तो खेलने को अच्छा लगेगा। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करना चाहिए। इसके पीछे गेम प्लानिंग ये है कि अच्छा टोटल बनाना चाह रहे हैं, या बैट्समैन से क्या अपेक्षा रखते हैं कि कहाँ तक जाए जहाँ पे आपके गेंदबाज डिफेंड करें? पूरा टीम तो नहीं खेल रहे हैं हमारा, लेकिन जो है तो फिर बैटिंग ही करना चाहिए। तो क्या फिर मैं उम्मीद फिर से करूं कि आतिश बामड़े अकेले खेलेंगे या पूरी टीम उनके साथ साथ देंगे? नहीं, टीम ही खेलेगी। ये तो बताइए कि आपके साथ कौन से बैट्समैन है जो रनों की तरफ जाएंगे? कुणाल है, 2-3 बैट्समैन है। लेकिन आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेलने जा रहे हैं। हाँ जरूर। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ जावेद हैं। जावेद, सबसे पहले एनआर 2 नंबर पे रैंक कर रही है। कहीं ऐसे मुकाबले जहां पर बहुत क्लोज आ रही, आपने दूसरा कप पावर कप शेलार जीता था, बहुत देर हो गई है उस बात को। पहले ये बताइए कि हमीद शेख, उप महापौर अहमद सिद्दीकी ने जो दिलों को जीतने वाला टूर्नामेंट रखा है, उसमें आपको कैसा लग रहा है? सर ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और हमीद भाई की बहुत मेहनत है इसमें, और अहमद भाई दोनों जन की, और क्रिकेट भी अच्छा होगा तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट चलेगा। ये बताइए कि एनआर पूरी ताकत के साथ आई है? हाँ सर, पूरी ताकत के साथ आई है। आप टॉस जीतते तो क्या करते? सर हम लोग टॉस जीत के फील्डिंग ही करते हैं। तो अभी भी आपको फील्डिंग करना है। ये बताइए कि साई विवान एक युवा टीम है और कभी भी बड़ा अपसेट कर सकती है, लेकिन कहाँ तक आप रोकना चाहेंगे? सर 50, 60 प्लस 50 और 60 के अंदर ही रोकना चाहेंगे। कौन से गेंदबाज हैं जिनको आप ट्रम्प कार्ड मानते हैं? संतोष मडवी, नो डाउट। तो हम ये उम्मीद करें कि एनआर अपने स्टाइल में आगे बढ़ने जा रही। हाँ सर, ये अपनी ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज साई विवान won the toss. They decided to bat first. Is back to the commentary box. Ajay Kharath is there. धन्यवाद सदीक भावे। आज का चौथा मुकाबला इस समय चल रहा है डेप्यूटी मेयर कप 2017 में। आप सभी का एक बार फिर से जबरदस्त स्वागत है। दूसरे दिन का खेल और आज का चौथा मैच। मैगी 11 बनाम पायनियर स्पोर्ट्स। पहले बल्लेबाजी की मैगी ने, शुरुआत दमदार रही थी। पहले 3 ओवर में 50 रन बने थे, लेकिन अंत काफी खराब रहा। आखिर के 3 ओवर्स में केवल 12 रन बना पाए बल्लेबाज और 7 बैट्समैन उसमें आउट हुए। शानदार वापसी रही पायनियर स्पोर्ट्स की। जिलानी आज जरूर महंगे साबित हुए, लेकिन जुल्फिकार और ऋषि पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी की। ऋषि पटेल ने अपने 2 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए और कुल मिलाकर 4 सफलताएं प्राप्त की। जुल्फिकार ने 1 ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट्स प्राप्त किए। उसामा ने 1 ओवर किया था। उसामा भी आज महंगे साबित हुए, 16 रन खर्च किए।
जिलानी ने 2 ओवर में 34 रन दिए, सिर्फ एक सफलता उनको मिली। 63 रनों की चुनौती पायनियर स्पोर्ट्स के सामने मुकाबला जीतने के लिए। भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं इस समय। सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं मैदान में मैगी 11 के। काफी मशक्कत और मेहनत करनी होगी गेंदबाजों को मैगी 11 के यदि मैच को जीतना है तो। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद 80 से ज्यादा रन आसानी से बन जाएंगे, लेकिन जिस तरह की वापसी की पायनियर स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने, काबिल तारीफ। फील्डिंग लाजवाब रही आखिर के 3 ओवर्स में। बहुत ही शानदार कैचेस लिए गए। कैप्टन आशिर जख्मी भी हुए कैच लेते हुए। शारिम खतीब ने एक शानदार रनिंग कैच लिया। तीनों भी अंपायर्स मैदान में जाते हुए, विलास जाधव, गोकुलदास पाटिल और हसन मोमिन। सलामी जोड़ी पायनियर स्पोर्ट्स की मैदान में। सलामी बल्लेबाज रमीज रईस और उनके साथ फुरकान। एक दायत का बल्लेबाज है तो दूसरा बायत का। दोनों के पास अच्छा खासा अनुभव है। रमीज ने भी इस मैदान पर कुछ अच्छी पारियां खेली हुई है, अच्छी यादें जुड़ी हुई है उनकी इस मैदान से। अंजुमन ट्रॉफी में जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, डाउन द विकेट बहुत अच्छे शॉट्स खेले थे। इस समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। स्ट्राइक लेने की तैयारी में। पेविलियन एंड से पारी का पहला ओवर लेकर गेंदबाज साजिद अंसारी। साजिद अंसारी भी अनुभवी गेंदबाज है। अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा बायत के गेंदबाज। पहली गेंद लेकर बिल्कुल लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद थी, कलाइयों के सहारे मोड़ा है उसको। थोड़ी सी हड़बड़ाहट वहां पर। अपील, लेकिन पहुंच गए अपने क्रीज में। दूसरे रन के लिए काफी उत्साही थे। बिल्कुल तालमेल की साफ कमी नजर आई अजय गरत और बच गए वहां पे रमीज रईस। इस वक्त मैगी को ऑल द बेस्ट कहा है आलोक चौधरी ने कामतगढ़ से। आउट ऑफ कमेंट्री बॉक्स आप सुन रहे सिद्दीक भावे को। ये भी आप अलग प्रयोग कर रहे हैं इस समय। एक रन बिना किसी नुकसान के पायनियर स्पोर्ट्स 10.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती। अब सामना कर रहे फुरकान। रिवर्स की कोशिश, अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। हाफ हार्टेड अपील। पहले ही गेंद खेल रहे थे, रिवर्स खेलने की कोशिश, पहले ही मन बना लिया था। ऊपर से खेल बैठे, गेंद बल्ले के नीचे से गुजरती हुई सीधे विकेट कीपर मैगी के पास। फिर से इस बार खेला उसको, 4 रन। पॉइंट को आसानी से बीट किया और आखिरकार अपनी हसरत पूरी कर ली वहां पर फुरकान ने। आजकल अजय गरत फुरकान रिवर्स भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इन्होंने इसी तरह का शॉट मापोली क्रिकेट धमाका में ऐन मौके पे लगाया था। जी हाँ, बहुत अच्छी पारी खेली थी उस मैच में फुरकान ने। मैच जिताऊ पारी खेली थी अपनी टीम के लिए मापोली ट्रॉफी में। और एक अच्छा बल्लेबाज बनना है टेनिस क्रिकेट में तो ये स्ट्रोक तो होना चाहिए आपके पास। इस बार
ऑन साइड में खेला है, मिस फील्ड, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन, खराब फील्डिंग। आसानी से फील्ड किया जा सकता था, दोनों टांगों के बीच में से गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। दूसरी बाउंड्री फुरकान के लिए। स्कोर इस समय 9 रन बिना किसी नुकसान के। क्या चौकों की हैट्रिक होगी? जी नहीं, खड़े खड़े लगभग स्वीप कर दिया था उसको। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात, सिर्फ 1 रन। रन संख्या दोहरे अंकों में 10 रन बिना किसी नुकसान के। और जो औसत चाहिए प्रति ओवर, लगभग उसके हिसाब से ही बल्लेबाजी की शुरुआत की अभी तक पायनियर के सलामी बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक अब रमीज के पास। बहुत ही दर्शनीय ड्राइव, गोली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। What a shot! He is the informed batsman of Pioneer, Ramiz Rice. That was a choosy off volley, flashed away through the extra cover. Terrific timing, delightful stroke from Ramiz Rice. Pioneer taken a full chances in mandatory power play. ये देखिए, बिल्कुल गेंद के ऊपर बल्ले के बीचों बीच लिया था, जगह मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर, अपना मौका ताड़ते हुए 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। शानदार शुरुआत पायनियर स्पोर्ट्स की, अच्छा जवाब देते हुए सलामी बैट्समैन। 1 ओवर की समाप्ति, 14 रन बिना किसी नुकसान के। वीआईपी डाइस का नजारा, कई मेहमान वहां पर नजर आते हुए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 में। पहले ओवर में 3 चौके लगे, एक मिसफील्ड की वजह से, और बाकी के जो 2 चौके थे दर्शनीय स्ट्रोक थे। एक फुरकान का रिवर्स और उसके बाद शानदार ऑफ ड्राइव रमीज का। आकाश की पहली गेंद की पिच तक नहीं थे, आगे जरूर निकले थे, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला 1 रन के लिए। आकाश काफी महत्वपूर्ण गेंदबाज है जहां तक मैगी 11 का सवाल है। और सिद्दीक भावे, आकाश को कहीं ना कहीं इस विकेट से सहायता मिल सकती है। लेकिन आपने देखा कि पहली गेंद उन्होंने थोड़ी क्वेकर वन की थी, ना कि लेग ब्रेक। देखना है कि रमीज रईस जो कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, आकाश क्या उनके सामने लेग ब्रेक करते हैं या फिर क्वेकर वन? जी हाँ, क्षमता है उनके पास दोनों तरह की गेंदें करने की। घूमी गेंद हवा में, ओहो हो, गली की तरफ कैच छूटता हुआ और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ये गाना खास कमेंटेटर सिद्दीक भावे के लिए था। आगे निकले, इस बार हवा में चकमा खा बैठे, मौका रन आउट का और इसके साथ ही पहले विकेट का पतन। ये गलती कर बैठे दोनों बल्लेबाज। जब आप अच्छा खेलते हैं
और रन आउट होते हैं तो मानो सामने वाली टीम का जो जोश है वो उभर जाता है। यही कुछ देखा था हमने, जिस तरह से रन आउट हुए थे मैगी की पारी में नितिन, उसके बाद विकेटों की झड़ी सी लग गई थी। ये देखिए, ये हालांकि टर्न अंदर की तरफ हुई थी लेकिन क्रीज के बाहर पिच होने के बाद जरूरत नहीं थी इस तरह का रन लेने की, विकेट कीपर के हाथों में चली गई थी गेंद। हमारे बीच अंजुमन के निहाल शेख साहब पहुंच चुके हैं। हम आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम भी करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके क्लब का शुक्रिया अदा करते हैं उप महापौर कप में साथ निभाने के लिए। उन्नीस रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय पायनियर स्पोर्ट्स। रन जरूर अच्छे बने लेकिन रमीज रईस का आउट होना, जब आप अच्छा खेल रहे हैं तो इस तरह रन आउट होते हैं तो मानो वहां से मौका मिलता है। 9 रन बनाकर आउट हुए रमीज रईस। अपील वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था। हमारे बीच अमित शेख के कई दोस्त आ चुके हैं, शाशु भाई, यूसुफ भाई, रफीक भाई, रिजवान भाई, शरीफ भाई, हाफिज भाई, शाबुद्दीन भाई, महबूब साहब, आजीज भाई, जब्बार भाई, वसीम खान, शरीफ भाई, एजाज अंसारी, परवेज फारूकी और रफीक के इन सभी का हम दिल की गहराइयों से इस्तेकबाल करते हैं। वेलकम। निहाल शेख आपका खैर मकदम है। इसके बाद के अच्छी गेंद, गूगली किया था लगभग। इसके बाद के जो दोनों मुकाबले हैं वो 5-5 ओवर के रहेंगे। एनआर बोरपाड़ा के कैप्टन भी इस बात को सुन लें और साईं विवान के कैप्टन और प्रिंस मूवीज के कैप्टन और वीरेन स्पोर्ट्स के कैप्टन, आगे के दोनों मुकाबले 5-5 ओवर के रहेंगे। 2 मैंडेटरी पावर प्ले जरूर रहेंगे। रिवर्स खेला लेकिन सीधे फील्डर के पास। ये तो अजब बन गए, इनका क्लास भी बढ़ चुका है। फुरकान का रिवर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। मतीन मस्ते हमारे बीच तशरीफ लाते हुए आपका इस्तेकबाल है। 2 ओवर और कुल मिलाकर रन बने पायनियर के 20, 1 विकेट। ये नहीं भूलना चाहिए कि कप्तान आशिर इस वक्त काफी फॉर्म में चल रहे, लेकिन जहां तक मैगी का ताल्लुक है, दानिश को ऊपर भेजा है। ये हबीब भाई, हमीद भाई के सभी दोस्तों को बताया जा रहा है जो हमारे बीच यहाँ तशरीफ रख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शाम है। उप महापौर अहमद सिद्दीकी की ये शाम आप सभी के नाम, हमीद शेख की शाम सभी के नाम, अहमद स्पोर्ट्स की ये शाम सभी के नाम। इश्क की चिंगारियों को वो हवा देने लगे, सामने मेरे बैठ के दुश्मन को दुआ देने लगे। खत्म करनी पड़ेंगी शाम गम की उलझने, अब वो अपने गेसुओं का वास्ता देने लगे। और डूबने वाले को साहिल से जब दिया मैंने हाथ, तो वो भी मुझको डूबने का मशवरा देने लगे। क्या बात है, लेकिन आपको तो डूबना नहीं है और यहाँ पर कोई टीम भी डूबना नहीं चाहेगी। अच्छे कमेंट्स देते हैं मेरे साथी कमेंटेटर। समय में कोऑपरेट करना है क्योंकि अगले मुकाबले के समय की वजह से 1-1 ओवर कम किए हैं। अहमद स्पोर्ट चारों टीमों से क्षमा चाहती। समय की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या रही है भिवंडी टेनिस क्रिकेट में, सिटी क्रिकेट में खासतौर पर। यस, और ये बातें भी BC4 के सामने जरूर आएंगी जब हर चीज आ चुकी। वैसे देखा जाए तो 6 मुकाबले 6-6 ओवर्स के आसानी से होने चाहिए, लेकिन जब मैच ज्यादा क्लोज होता है तो ज्यादा समय लिया जाता है। नहीं ठीक है, टफ इनकाउंटर अलग बात है। आपने सिक्सर मारा, आपने बाउंड्री मारी, गेंद मैदान के अंदर है, उसके बाद गेंद जब वापस आती है तो बैट्समैन देखता है कि गेंद कहीं खराब तो नहीं हुई। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, मयूर आए हैं अटैक पर पेविलियन छोर से। मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हो चुका है। यहाँ पर कैप्टन के पास आज़ादी कि फील्ड को खोल सकते हैं और तुरंत फील्ड को खोल दिया है मैगी ने।
पहली ऑफिशियल वार्निंग और बैक टू बैक आप हाजी कह रहे हैं कि 3 ऑफिशियल वार्निंग तुरंत ही किसी टीम को दी जाएंगी। ऑर्गेनाइजिंग चीफ हाजी का कहना है, हाजी शेख का, मयूर लसित मलिंगा ऑफ भिवंडी। कल हमने मिचेल स्टॉक को देखा था, आज लसित मलिंगा को देख रहे हैं। हूबहू उनका बॉलिंग एक्शन है। कल अहमद नवाब स्पोर्ट के मिचेल स्टॉक की तरह गेंदबाजी का बॉलिंग एक्शन था उनका। मयूर की पहली गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, आगे रखा था, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर। कॉरिडोर अनसर्टिनिटी से गेंद पहुंची थी, विकेट कीपर के दस्तानों में बच गए वहां पर। ये देखिए काफी मोमेंट मिला था वहां पर। टिप्पा खाने के बाद गेंद शरारत करती हुई विकेट कीपर के पास पहुंची थी। लेट स्विंग था, बल्ले के पास से गुजरने के बाद ज्यादा स्विंग हुई थी गेंद। इस बार हवा में खेला है गेंद को, फील्डर बाउंड्री पर, कोई गलती नहीं, फुरकान की पारी का अंत। बड़ा झटका लगता हुआ पायनियर को, फुरकान आउट होके का योगदान दिया फुरकान ने अपनी टीम को। नए बैट्समैन माजिद बोबडे, हाफ वॉली में हालांकि लिया था उन्होंने, संपर्क अच्छा था लेकिन प्लेसमेंट नहीं। बिल्कुल गेंद सीधी ट्रेवल करती हुई नए बैट्समैन माजिद बोबडे, डीकॉक ऑफ भिवंडी अच्छे फॉर्म में चल रहे। गेंद पुरानी बदलने की मांग की गई है वहां पर। पायनियर स्पोर्ट्स को यहाँ पर चाहिए एक अच्छी पार्टनरशिप। नियमित अंतराल पर यदि विकेट निकालते रहते हैं गेंदबाज मैगी 11 के, तो निश्चित रूप से उनकी जीत की संभावनाएं बढ़ सकती है। अभी भी काफी खेल बचा हुआ है। दोस्तों जब तक एक गेंद बदली जाए, मैं फिर से हमारे शासू भाई, यूसुफ भाई, रफीक भाई, रिजवान भाई, शरीफ भाई, हाफिज भाई, शाबुद्दीन भाई, महबूब भाई, अजीज भाई, जब्बार भाई, वसीम खान, शरीफ भाई, एजाज अंसारी, परवेज फारूकी और रफीक के सभी का खैर मकदम करता हूं। ये देखिए अनवर शेख, आरपीआई के इरफान हदीस अंसारी, बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी, रॉयल रोशन, रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर निहाल शेख, आपका भी इस्तकबाल है। आमदार मैच चोगले का कटआउट, ये दयानंद चोरगे, भारतीय जनता पार्टी ठाणा जिला अध्यक्ष। ये आप देख सकते हैं थर्ड आई, सीसीटीवी, ये तीसरी आंख, जबकि हमारी तीसरी आंख हमारे कमेंट्री बॉक्स में फैज रईस, ये तीसरी आंख दिखाई जा रही है। ये अहमद सिद्दीकी, उप महापौर, तकवीम आजमी उर्फ भुट्टू, स्पॉन्सरों के स्पॉन्सर, ये योगेश पाटिल, माजी आमदार। खेल की शुरुआत होती भी लसित मलिंगा तैयार, यासीन अंसारी, मयूर सामना करेंगे दानिश खोत। दानिश खोत को आज ऊपर भेजा है और ये वो बैट्समैन है कि एक बार रंग में आ गए तो सारे रंग दिखा देते हैं। आपको तो पता होगा बी इंडियन ट्रॉफी में पिछले साल इन्होंने गोल्डन 6 लगाया था। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर इस समय। उछाल दिया है गेंद को हवा में और बाउंड्री के बाहर, 6 रन। कहीं धोनी तो नहीं आए। दानिश खोत ने जो शॉट खेला है एमएस धोनी के अंदाज में, हेलीकॉप्टर, क्या शॉट है। जाजिबुल नजर स्ट्रोक, दिल को छू लेने वाला स्ट्रोक, नजर में समा जाने वाला स्ट्रोक, रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। ओहो, महेंद्र सिंह धोनी। जबरदस्त संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, काफी ऊपर चली गई थी और काफी दूर भी गिरती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रनों से अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू किया दानिश ने। एक बार फिर से मयूर, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार यॉर्कर लेंथ खोद कर निकाला खोद ने। जब उनका नाम ही खोद है तो वो खोद कर क्यों नहीं निकालेंगे।
एक रन। बिल्कुल सही कहा आपने, यॉर्कर गेंद को खोद के निकाला दानिश खोद ने। स्कोर इस वक्त 27 रन हो चुका है, जबकि लक्ष्य है 63 रनों का। यानी कि अब 36 रन और चाहिए यहां से मैच को जीतने के लिए। कुल मिलाकर 20 गेंदें शेष है, बहुत ज्यादा भी आस्किंग रेट नहीं है। विकेट्स काफी महत्वपूर्ण है दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से। माजिद के पास स्ट्राइक, थोड़ा सा पीछे रखा था इस बार, अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर का कहना है कि बल्ले से नहीं लगी थी गेंद, थाई से लगी थी बैट्समैन के। नॉट आउट घोषित दिया अंपायर ने, क्योंकि देखना चाहेंगे हम बिल्कुल सही निर्णय अंपायर का। अंपायरिंग इस सीजन में जो भिवंडी के अंपायर हैं वो काफी चमके, लाजवाब अंपायरिंग की है। पहले ऐसे लगा कि शायद थाई पर लगी है, लेकिन नहीं, काफी ऊपर लगी थी रिब केज में। और कौन कहता है कि भिवंडी में टैलेंट कम है? भिवंडी का क्रिकेट तो सारी दुनिया में मशहूर, भिवंडी के अंपायर्स मशहूर, भिवंडी का ऑर्गेनाइज मशहूर, भिवंडी की स्पॉन्सरशिप मशहूर, इनामात मशहूर, कमेंटेटर्स से लेके हर चीज मशहूर है। ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, ऑन साइड में खेलने की कोशिश, ज्यादा उछाल नहीं था। वैसे भी साइड आर्म गेंदबाजी जब होती है तो ज्यादा उछाल आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। एक अच्छी गेंद से ओवर की समाप्ति होती हुई। कुल मिलाकर 7 रन केवल आए इस ओवर से, 27 पर 2 पायनियर स्पोर्ट्स। 27 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर में 36 रन चाहिए, 12 का आस्किंग रन रेट है। लेकिन अजय करत, जब आपके पास 8 विकेट हैं तो मानो आपको लाइसेंस मिल जाता है। समय में कॉपरेट करना है दोनों टीमें। ये देखिए, हमीद शेख के सभी साथियों को हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। मोहसिन हमसे जुड़ते हुए आपका भी इस्तकबाल है। हमीद शेख वाकई में इवेंट मैनेजमेंट अकेले के बलबूते पे करते हुए। बहुत ही खूबसूरत शाम है दोस्तों, और इस शाम में अब आकाश दूर वाले छोर से मैगी भी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने आकाश को इसलिए कंटिन्यू रखा है क्योंकि मैच यहां से टर्न ले सकता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहती है 6 ओवर्स के मैच में कि कौन से 2 गेंदबाजों को आप 2-2 ओवर दे रहे हैं। सामना करेंगे दानिश को। प्लीज मैगी कोऑपरेट अस। आकाश मुड़ते हुए दानिश खोद के लिए। इस मरतबा अच्छी लेग ब्रेक थी, अगेंस्ट द टर्न खेला था, डॉट गेंद। डॉट बॉल से यदि खेलेंगे बैट्समैन तो दबाव बनेगा। अच्छा टर्न प्राप्त कर रहे हैं वहां पर आकाश। पहले ही उन्होंने देख लिया था कि बैट्समैन क्या करना चाह रहे हैं। कुछ जाके कहा है वहां पर माजिद बोबड़े ने दानिश खोद को। 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पायनियर। रिवर्स खेला है, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, तेज थी लेकिन गैप में जाती हुई दूर से खिलाड़ी आए, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। 29 पे पहुंचा पायनियर का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पे। कुछ अलग सोच यहाँ पर बैट्समैन की, और इस तरह से कुछ ना कुछ अलग करते रहना ही चाहिए। रन आने बहुत जरूरी, फिर वो कैसे आ रहे हैं उस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। आकाश इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया, चिप किया वहां पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ गेंद पहुंची है, बढ़िया थ्रो पहुंचा, सिर्फ 1 रन। गेंद की पिच तक पूरी तरह से नहीं दे, पूरा स्ट्रोक भी नहीं खेल पाए थे, केवल चिप किया था।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पे पहुंचा है पायनियर का। इसके बाद साई विवान ने टॉस जीता है, बल्लेबाजी करने का फैसला किया एनआर के सामने। उसके बाद प्रिंस मूवीज और वीरेन स्पोर्ट। कल पहला मुकाबला बंटी स्पोर्ट बनाम पीजी स्पोर्ट, दूसरा मुकाबला तकवीम आजमी स्पोर्ट और वियान मित कुमार, तीसरा वॉर ऑफ टाइटंस भोलेनाथ स्पोर्ट और अकी स्पोर्ट मापोली, चौथा आर्यन स्पोर्ट और मतीन स्पोर्ट मापोली, पांचवा मराठा पंजाब और भिवंडी टाइगर्स और आखिरी धनेश बना मानसी का। दूसरी ऑफिशियल वार्निंग समय के लिए मैगी को। इस मर्तबा घूम के मारने की कोशिश, डॉट गेंद। कुछ ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिल रहा है, जिसका लाभ इस समय गेंदबाज उठाते हुए सिर्फ 3 रन अभी तक खर्च किए। तेज किया था और सीधा भी रखा था, टर्न नहीं था गेंद में, और टर्न के लिए खेले थे माजिद बोबड़े। आकाश राइट आर्म राउंड विकेट, फिर से तेज गेंद, सीधा रखा माजिद बोबड़े कठिनाइयों में। लगातार ऑन साइड पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, सीधे बल्ले से कोई भी शॉट नहीं खेला उन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को ऑन साइड में खेलने की कोशिश हो रही है, अभी तक खाता नहीं खोल पाए अपना। आकाश को आकाश में खेलने की कोशिश हो रही है माजिद बोबड़े की। आकाश राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए, छोटी गेंद हुक कर दिया गेंद को, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अच्छा शॉट, इस बार थोड़ा सा इंतजार किया था, गेंद को आने दिया, उसके बाद शॉट खेला गया था। पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आए इस बार माजिद, चौके से खाता खोला। 4 ओवर की समाप्ति, 34 रन। 4 ओवर में 34 रन हो चुके हैं। 4 ओवर में 34 रन हो चुके हैं और 2 ओवर में अब जीतने के लिए डू और डाई 29 रन चाहिए। यहाँ लड़ो या मरो, करो या मरो। हमीद शेख अपने साथियों के साथ दिखाए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत शाम है। मैंने जो लम्हे तेरे साथ गुजारे थे, कभी उन लम्हों को तेरी आंखों में उतरता देखूं, और शाम भी हो गई, धुंधला गई आंखें मेरी, भूलने वाले मैं कब तक तेरा रास्ता देखूं। अगर आप भूल गए हैं कि उप महापौर चषक चल रहा है तो याद कीजिए। नहीं बोलेंगे दर्शक। 2 ओवर में 29 रन। एक और टफ एनकाउंटर देखने को मिल रहा है। नहीं, यहाँ पर तो एक ही चारा रह गया है कि आपको काउंटर अटैक करना होगा दोनों बैट्समैन को। लेकिन मैं मैगी की तारीफ करूंगा, कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं। लसित मलिंगा को कंटिन्यू रखा है, क्योंकि 5वां ओवर अगर यहाँ कम रन बने तो आखिरी ओवर में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी पॉइनियर की। तारीफ तो आकाश की भी होगी यहाँ पर। 2 ओवर में सिर्फ 13 रन खर्च किए उन्होंने। आकाश राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए दानिश खोत के लिए। मयूर इस मर्तबा फ्लिक नहीं पकड़ पाए वहां पर सलमान, लेकिन रन नहीं लिया माजिद बोबड़े ने। हालांकि शॉट बहुत दमदार था, लेकिन प्लेसमेंट नहीं थी, और जरूर मौका था कैच का सलमान के लिए। फुल टॉस गेंद थी, बाउंड्री भी इस पर मिल सकती थी, लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल बैठे थे। जीवन दान मिलता हुआ दानिश खोत को। 1 रन से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। अब 11 गेंदें और 28 रन चाहिए। मयूर राइट आर्म ओवर द विकेट। माजिद के लिए लंबा हिट लेने की कोशिश, विकेटों के ऊपर से गेंद, लगातार लॉन्ग वे शफल खेल रहे हैं माजिद बोबड़े। स्वंग करना चाहते थे ऑन साइड में। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हम देख रहे हैं मयूर की। ये देखिए, काफी मोमेंट मिल रहा है उनको। जी हाँ, पढ़ने के बाद गेंद उनकी बाहर की तरफ निकल रही है। लाइन बहुत अच्छी मेंटेन की है।
ऑफ स्टंप के आसपास ही गेंदों को रख रहे हैं, दबाव में अब नजर आते हुए दोनों भी बैट्समैन, खासतौर पर माजिद बोबड़े ज्यादा दबाव में है। 5 डॉट बॉल्स अब तक खेली है। मयूर राइट आर्म ओवर द विकेट, 10 गेंदे 28 रन। इस मरतबा बहुत दूर किया उन्होंने वाइट। 1 रन से पॉइनियर का स्कोर आगे सरकता हुआ 36 रनों पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे। अब 10 गेंदे और 27 रन। कुछ बड़े शॉट्स की जरूरत है। बाउंड्री यदि नहीं आती है तो फिर बहुत मुश्किल पाइनियर स्पोर्ट्स के लिए। यस, मयूर के अगेन बोल्ड अराउंड द लेग्स। आज माजिद बोबड़े लगभग 5-6 डॉट गेंद खेलने के बाद 4 रन बनाकर आउट हो गए, और इस सीजन में पहली मर्तबा हम माजिद बोबड़े को इतनी खराब बल्लेबाजी करते देख रहे हैं। पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म नजर आए इस मैच में। अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए। तेज तर्रार गेंद थी, गेंद पहले निकल गई, बल्ला बाद में आता हुआ, बिल्कुल लक्ष्य पर फेंकी हुई। ये देखिए, बहुत ही शानदार गेंद, रफ्तार में पूरी तरह से बीट किया, मिडिल स्टंप पर जाकर टकराई गेंद। माजिद बोबड़े जिस तरह के खेल के लिए जाने जाते हैं वो बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। नए बैट्समैन कैप्टन आशिर अंसारी। 9 गेंदों में 27 रन चाहिए। हर गेंद पर औसतन 3 रनों की जरूरत है। बिल्कुल, ये इनफॉर्म बैट्समैन है और कई अच्छी इनिंग्स उन्होंने इस सीजन में खेली है, 30+ कई मर्तबा बनाए हैं। लेकिन कप्तान को अब जरूरत है अपनी बल्लेबाजी की। मयूर आशिर के लिए ये लगा बूम बूम, लेकिन फील्डर मौजूद, आउट। एलिवेशन नहीं बना था, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर और गेंद गई मिड विकेट पर। रिप्ले में देखना चाहेंगे, जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं खेल बैठे थे। शुरू किया था देखना उन्होंने स्क्वायर लेग की जानिब और गेंद चली गई बॉटम ऑफ द बैट लगकर। ये देखिए, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर और गेंद चली गई, मैक्सवेल के अंदाज में खेला था मिड विकेट पर। बैट का मुंह पहले ही बंद हो गया था। स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश उनकी, थोड़ा सा लीडिंग एज गेंद, क्योंकि बल्ला पहले ही उन्होंने थोड़ा सा घुमाया था, तेज बल्ला घुमाया था। थोड़ी सी देर बाद आती हुई गेंद और आउट हो गए वहां पर आशिर अंसारी डक पर। मयूर सुस्ते और रोहित यादव ने पड़गा से ऑल द बेस्ट कहा है इस वक्त मैगी 11 को, लेकिन ऑल इज वेल चलता हुआ। पॉइनियर कठिनाइयों में कप्तान भी लौटे और हैट्रिक पर हैं लसित मलिंगा। मयूर नए बैट्समैन ऋषि पटेल आए हैं, बायात के बल्लेबाज है। चुनौती लगातार कठिन होती जा रही है पाइनियर स्पोर्ट्स के लिए। इस बीच वाइट गेंद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 37 रन। कैप्टन मैगी की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, बाउंड्री भी हो सकती थी, इतनी बाहर थी लेग स्टंप के। अच्छा पूर्वानुमान, अच्छी विकेट कीपिंग। मयूर राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन दानिश खोत। दानिश खोत ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है, कुल मिलाकर 11 पे खेल रहे हैं। एक 6 बहुत खूबसूरत लगाया था। इस मरतबा बहुत ही करारा ड्राइव, मीठी आवाज निकलती हुई। आउटफील्ड में फील्डर मौजूद हैं, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। और एक से तो बात बनने वाली है नहीं, चौकों छक्कों की जरूरत है इस समय पाइनियर स्पोर्ट्स को। बिल्कुल सही कहा आपने, अब बल्लेबाजों को चौकों और छक्कों में बात करनी होंगी। स्कोर है इस वक्त 38 रन, जबकि लक्ष्य है 63 का, और कुल मिलाकर अभी भी 25 रन चाहिए, 25। गेंदें बची है केवल 7 गेंदों में 25 रन। बड़ा ही मुश्किल समीकरण पाइनियर स्पोर्ट्स के लिए। हालांकि पाइनियर स्पोर्ट्स कब पलटवार कर जाए कहा नहीं जा सकता। नहीं, अभी भी हम नहीं कह सकते कि ये वो टीम है जो कभी भी कुछ भी कर सकती। अभी भी ऐसा नहीं है, पड़ला जरूर भारी है मैगी का। ये गेंद बहुत निर्णायक है, जहाँ पे 7 गेंदों में सिल्वर जुबली रन चाहिए।
मयूर के स्पेल की आखिरी गेंद, सामना करेंगे ऋषि पटेल। मयूर राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए ऋषि पटेल को, इस मरतबा ब्लॉक आउट में था, फ्लिक किया, बहुत खूबसूरत शॉट, 6 रन खोद कर निकाला। और वो तो कहावत है कि खोदा पार निकला चूहा, लेकिन ये खोदी पिच और निकला छक्का। क्या बात है, एफर्टलेस, ताकत ज्यादा नहीं जोगी थी, कम से कम प्रयास और ज्यादा से ज्यादा परिणाम हासिल करते हुए मयूर की आखिरी गेंद पर छक्का। फॉलो थ्रू बहुत अच्छा था बैट का, फुल फेस ऑफ द बैट। कल इसी तरह जो 6 लगा था बालाजी के अक्षय ने लगाया था, अनबिलीवेबल था, ये भी शॉट अनबिलीवेबल है। अब 1 ओवर और 19 रन, अब मैच में जान आ गई है। और वो जो कहते हैं ना, सांस है तो आस है, और जान है तो जहान है। 6 गेंदों में 19 रन। ये देखिए अल्ताफ बाली भी थोड़े से टेंस में। नहीं, थोड़ा सा तो रिलैक्स है उस आखिरी छक्के पर। ये तो इतने गुर्दे जिगर वाले हैं, इन्होंने क्रिकेट का नक्शा ही बदल डाला। देखना है ऋषि पटेल और दानिश खोत क्या इस मैच का नक्शा पलट पाते या नहीं। समय हमारे पास बहुत कम है। ये समय ही ऐसा है जब गला सूखने लगता है। खिलाड़ियों का तो ठीक है, कमेंटेटर्स का नहीं सूखना चाहिए। ये देखिए अल्ताफ बाली को दिखाया जा रहा है, अभी भी श्योर नहीं प्लेस पवेलियन में, लेकिन यहां से उम्मीद जगा दी है ऋषि ने, क्योंकि स्ट्राइक दानिश खोत के पास है और अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। आज थोड़ा सा जख्मी थे, आशिर ने भी जो शॉट खेला था वो शॉट एलिवेशन नहीं बना पाया था, लेकिन मैगी की कप्तानी की भी मैं दाद दूंगा, जिन्होंने कप्तानी मौके पे बहुत अच्छी की है। अपने गेंदबाजी का जो बदल किया है वो बहुत लाजवाब किया है। खास तौर पर आकाश और मयूर के जो 2-2 ओवर्स थे उनको कंटिन्यू रखा था उन्होंने, और वो निर्णय उनके सही साबित हुए। एक बात सुनिए, मैगी 11 2 ऑफिशियल वार्निंग मिल चुके हैं आपको। क्योंकि कमेटी जो अनाउंस हमें कहने करेंगी वो हमें कर्तव्य है कि आप तक पहुंचाया जाए। आरिफ को गेंदबाजी दी गई है और देखना है कि दानिश खोत, ये अब मुकाबला पायनियर वर्सेस आरिफ हो गया है, क्योंकि जो पाना है वो आरिफ को पाना है और जो गंवाना है वो आरिफ को गंवाना है। देखना है दानिश खोत की क्या सोच रहती है। स्ट्राइक उनके पास है इस समय। 6 रन बनाकर खेल रहे ऋषि पटेल, सिर्फ एक गेंद का सामना किया है। लाजवाब छक्का जड़ा था उन्होंने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर। गेंदबाजी के लिए आरिफ, सामना करेंगे दानिश खोत। ये देखिए 11 डॉट गेंदें खेली थी मैगी ने और 10 डॉट गेंदें अब तक पॉइनियर भी खेल चुकी। आरिफ पहली गेंद लिफ्ट कर दिया मिड विकेट पर और गेंद जा रही है 6 रनों के लिए। बहुत खूबसूरत फ्लिक स्ट्रोक, कैलकुलेटेड 6, और 6 रन तो 6 रन होते हैं, चाहे फिर वो बाउंड्री पर गिरे या फिर मैदान के बाहर जाए। बिल्कुल फ्लिक शॉट जो खेला उन्होंने वो कैलकुलेटेड था, और ये समय भी ऐसा है जहां पर आपको हर चीज नाप तोल के करना है। 5 गेंदे 13 रन पॉइनियर, मैंने कहा था ना ये पॉइनियर टीम है, ये कुछ भी कर सकती है। अगर टॉनी गिरे के यहाँ होते तो जरूर कहते कि बैकवर्क ये भिवंडी तालुका की सबसे बेहतरीन टीम है और बैकवर्क के उलटफेर में अपने आप को भी शिकस्त दे सकती है। कमाल का मैच हो रहा है, 50 रन पूरे हुए छक्के के साथ पायनियर स्पोर्ट्स के। अब 5 में 13। पहली गेंद पर बड़ा शॉट, गेंदबाज दबाव में। आरिफ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा स्लॉक करने की कोशिश और रन पूरा होता हुआ वहां पर रिकोशेस गेंद हुई है। देखना है अंपायर का क्या निर्णय रहता है।
2 रन पूरे किए। और ऋषि पटेल क्यों रुके थे वहां पर? जब नजरें बैट्समैन की नहीं थी तो फिर क्यों रुके थे? लेग बाय, आप गेंदे बचिए 4 और रन चाहिए 11। हमारे बीच मापोली की बहुत मशहूर पर्सनालिटी फरहान पटेल आ चुके हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं और फरहान पटेल आपसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है। मापोली की बहुत मशहूर पर्सनालिटी फरहान पटेल हमसे जुड़ते हुए, वेलकम। 4 में 11 हैरत अंगेज क्रिकेट देखने को मिल रहा है इस सत्र में। कई रोमांचक मुकाबले इससे पहले हमने देखे हैं। ये देखिए सोएब वो को जगा दिया है और शाम फरहान पटेल आपका इस्तकबाल है। आपसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है। मैगी बार बार कमेटी मुझे समय के लिए कह रही है। ये देखिए हमारे बीच फरहान पटेल आते हुए, वेलकम। ये लगा छक्का और गेंदबाज आरिफ हो गए अक्का बक्का। पिछला यदि कैलकुलेटेड था तो ये स्टेडियम के बाहर भेज दिया है। मैंने आपको कहा था ना कि दानिश खोत अगर एक बार रंग में आ गए तो शॉट के तमाम रंग उनके बल्ले से निकलेंगे। क्या शॉट खेला है! ये दूसरा मौका है कि आरिफ इस तरह पिंपल नहर के बाद रनों को लुटा रहे। 3 में अब 5 चाहिए। 7 गेंदों में 25 रन चाहिए थे। पिछली 4 गेंदों पर 20 रन बनाए हैं बल्लेबाजों ने। 3 छक्के लगे हैं। कहा था ना मैंने, पॉइनियर है। इस टीम का काम ही है एंटरटेनमेंट करना। इस टीम का काम है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। फिर वो मैच खेले या फिर उनका टूर्नामेंट हो। क्या बात है! उनका मैच हो या उनका टूर्नामेंट हो, तो बाली का इंतजार कीजिए, बाली ट्रॉफी का। डिप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 में अभी रंग भी भर दिया। देखिए बाली को, देखिए बिल्कुल वही अंदाज। वो कहीं भी बैठे उनका एक ही अंदाज रहता है। कितने रन चाहिए साहिबा मोमिन? 3 गेंदे और 5 रन। दानिश खोत अब तक कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? इस मर्तबा विकेटों के ऊपर से गेंद। आप कहानी में ट्विस्ट। जी हाँ, कहानी में पलटी। कहना अभी भी मुश्किल, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तेज किया था स्टंप्स के ऊपर से। अच्छा निर्णय अंपायर का। यस, विकेटों के ऊपर से गेंद गई थी टिप्पा खाने के बाद। मैंने तो कहा कि भिवंडी की जो अंपायर्स है, हमारे पूरा पैनल, उन्होंने पिछले 9 टूर्नामेंट्स लाजवाब किए हैं। खड़े होने का वक्त आ और गया। उसका एक रीजन है कि सभी ने लगभग 25 साल क्रिकेट भी खेला है। ये सबसे बड़ी बात है, सभी अंपायर्स। आरिफ लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए, छोटी गेंद पुल किया है, आउटफील्ड में गेंद पहुंची है। 1 रन। आप भाई क्या होगा इस मैच का? 1 गेंद 4 रन। तालुका क्रिकेट में ये 9वां मेगा इवेंट है। 1 मर्तबा गोल्डन बाउंड्री लगी है जो मेरा लगा चुके। 9 मर्तबा गोल्डन 6 लगा है। 8 मर्तबा गोल्डन 6 लगा है। क्या गोल्डन 6, क्या मैजिकल बॉल? आखिरी गोल्डन 6 आपको तो पता है, वो महेंद्र मागे ने लगा दिया, टीम को आगे कर दिया। उससे पहले आरी ने लगाया था एनआर को, और उससे पहले बी इंडियन को लगाया था संतोष मडवी ने। कुछ भी हो सकता है। अभी भी तीनों नतीजे पॉसिबल है। टाई के लिए हालांकि 3 रन चाहिए, वो मुश्किल नजर आ रहा है। चौका लगाना शायद उससे आसान हो सकता है। बिल्कुल, मुकाबला टाई होना बड़ा मुश्किल है। और एक बात है कि दोनों टीमों ने रंग भर दिया है उप महापौर कप में। किनारे पे आ गया मैच, और ऐसी स्थिति में आपको पता है कभी कभी किनारे लगकर भी बाउंड्री जाती है। लेकिन किनारे पे जब मैच आता है तो जो किनारे पे खिलाड़ी है बाउंड्री पे, वो दुआ करते कि गेंद उन तक नहीं आए। क्या होगा इस आखिरी गेंद पर? 1 गेंद 4 रन सुपर चाहिए। ओवर का जो ऑप्शन है वो बहुत मुश्किल लग रहा है। या तो मैगी या तो पाइनियर, आर या पार। आरिफ मुड़ते हुए ऋषि के लिए बॉल।
फुल टॉस गेंद पर बोल्ड हुए हैं, हालांकि जो गेंद बाहर चाहिए थे उस पर बोल्ड हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन मैगी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैगी 11, 8 लाख अल्ताफ बाली, 8 लाख अहमद फक्की एंड 8 लाख पॉइनियर। जो गेंद पे शॉट लगने चाहिए था उस गेंद पे विकेट, यही क्रिकेट है। जी हाँ, यही क्रिकेट है, यही पॉइनियर स्पोर्ट्स है। मनोरंजन किया उन्होंने दर्शकों का, शानदार मैच देखने को मिला। मैगी 11 की रोमांचक जीत। मैगी के लिए बहुत ही शानदार पारी खेली थी नितिन ने 39 रनों की। गेंदबाजी लाजवाब रही आकाश और मयूर की। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसका नाम है दी स्टीव ऑफ भिवंडी नितिन। 39 रनों की बहुत बढ़िया पारी खेली। नितिन आपको आगे आना है। नितिन 39 रनों की बारी के लिए पहले से मैं रफीक भाई से कहूंगा कि आपको गिफ्ट टेम्पर देना है। रफीक भाई, हाफिज भाई आपको मिठाई देंगे और मापोली की मशहूर पर्सनालिटी फरहान पटेल साहब आपको रिस्ट वॉच देंगे। आपने जो रिस्ट से बल्लेबाजी की है, रिस्ट वॉच आपको याद दिलाएंगी। बहुत बहुत अभिनंदन नितिन। नितिन, सबसे पहले मैं पूछता हूं कि मैच कैसा हुआ? बहुत ही अच्छा हुआ मैच। आपको कब लगा कि आपकी मेहनत पे पानी फिर रहा है और मैच आपके हाथ से जा रहा है? जब लास्ट का 6 लगा उसको, किसको? नफीस ने मारा, शायद दानिश ने मारा। और कब लगा कि आपके जो गेंदबाज है आरिफ, क्या आखिरी गेंद हो रही थी, आपको ये श्योर थे कि आप जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल श्योर था। बहुत दिनों के बाद एक अच्छी बल्लेबाजी आपने की है। क्या भिवंडी के दर्शक इसी तरह की बल्लेबाजी आपसे देखना और चाहेंगे और आप खेलेंगे? अच्छा खेलने का प्रयास करूंगा मैं और लोगों के लिए अच्छा करूंगा। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, ये थे नितिन। कॉन्ग्रेचुलेशन मैगी एंड गुड्डू एंड ऑल मैगी 11, 8 लाख पॉइनियर। आइए एक और बड़ा मुकाबला। हमारे अंपायर्स आपको तुरंत जाना है। आइए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत शाम है। पांच ओवर का ये मुकाबला है। 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले रहेगा और 4 गेंदबाज कंपलसरी रहेंगे। तो लौट चलते हैं उप महापौर अहमद सिद्दीकी की इस खूबसूरत दुनिया में, हमीद शेख की खूबसूरत दुनिया में, हाजी और उनके दोस्तों की खूबसूरत दुनिया में अजय घरत के साथ चेतन खारिक हमारे से जुड़ते हुए आपका भी हार्दिक स्वागत है। अगर बंटी शिल्के हमारे बीच में हो तो आपको वीआईपी डाइस पे आना है। नरेश माली हमारे बीच में हो तो आपको वीआईपी डाइस पे आना है। खेल की शुरुआत अजय घरत के साथ। शुक्रिया सिद्दीक भावे। कमाल का मनोरंजन हुआ पिछले मैच में दर्शकों का। तैयार